फ्रेंड्स, मेडिटेशन इन स्पिरिचुअल लाइफ बुक में आज फिफ्थ चैप्टर में वर्ल्डली ड्यूटीज एंड स्पिरिचुअल लाइफ में टॉपिक रहेगा ड्यूटीज ऑफ द हाउस होल्डर. In the Hindu scheme of social life, the householder is looked upon as the mainstay of society. It is necessary that children should be taught to contribute to the general welfare and security of the society. It is written in the Manusmriti, just all living beings depend upon air for their existence, so also people belonging to other stages of life depend on the householder for their sustenance. According to the Hindu scriptures, the householder has five kind of duties to discharge. These are: number one, have worship of gods. Second number, study of the scriptures, duty to the ancient sages. थर्ड है helping fellow beings. फोर्थ है offering oblation to ancestors. And fifth, protecting animals. These duties are called Panch Mahayajna, the great fivefold sacrifice. And all these duties are to be performed not as a drudgery but in a spirit of service, in a spirit of worship. When one discharges one's duty in this spirit, they do not lead to bondage. On the contrary, they help one in spiritual life. Vedanta aims at integrating duties, service, and worship. If an activity cannot be linked with our spiritual life, it is not to be called duty. If you find that a particular work is dragging you away from God, do not do it. All kinds of work must take us nearer and nearer to God. As Sri Krishna tells Uddhav in Bhagavatam, he who worships me constantly and steadfastly through the performance of his duty, knowing me as the supreme goal, such one become endowed with knowledge and realization and soon attains to my being. All duties, if accompanied by devotion to me, lead to liberation. This is the way to blessedness. गृहस्थ की कर्तव्य. हिंदू समाज में गृहस्थ को समाज का आधार माना जाता है. बच्चों को समाज के सामान्य कल्याण और सुरक्षा में योगदान देना सिखाया जाना चाहिए. मनुस्मृति में लिखा है कि जिस तरह सभी जीव अपने अस्तित्व के लिए वायु पर निर्भर हैं, उसी तरह जीवन के अन्य चरणों से संबंधित लोग भी अपने भरण पोषण के लिए गृहस्थ पर निर्भर हैं. हिंदू धर्म के अनुसार गृहस्थ को 5 प्रकार के कर्तव्य निभाने होते हैं. ये हैं: देवता की पूजा, शास्त्रों का अध्ययन, सभी प्राणियों की सहायता करना, पूर्वजों का तर्पण देना और पशुओं की रक्षा करना. इन कर्तव्यों को पंच महायज्ञ, महान 5 गुना बलिदान कहा जाता है. और ये सभी कर्तव्य एक कठिन परिश्रम के रूप में नहीं, बल्कि सेवा की भावना से, पूजा की भावना से किए जाना चाहिए. जब कोई इस भावना से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है तो वे बंधन की ओर नहीं ले जाते. आध्यात्मिक जीवन में एक वेदांत का उद्देश्य कर्तव्य, सेवा और पूजा को एकीकृत करना है. यदि कोई कार्य हमारे आध्यात्मिक जीवन से जुड़ा नहीं हो सकता तो उसे कर्तव्य नहीं कह सकते. यदि आपको लगता है कि कोई कार्य आपको ईश्वर से दूर खींच रहा है तो उसे कदापि न करें. सभी प्रकार के कार्य हमें ईश्वर के और करीब ले जाना चाहिए. जैसा कि श्री कृष्ण जी ने भागवत में उद्धव से कहा है कि जो पुरुष मुझे ही परम लक्ष्य जानकर अपने कर्तव्य का पालन करते हुए निरंतर स्थिर भाव से मेरी पूजा करता है, वह ज्ञान और साक्षात्कार से युक्त हो जाता है और शीघ्र ही मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेता है. यदि सभी कर्तव्य मेरी भक्ति सहित किए जाएं तो वे मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं और यही परमार्थ का मार्ग है. नेक्स्ट टॉपिक है मैंस ड्यूटी टू हिमसेल्फ. Over and above the 5 kinds of duties mentioned above, every man has a duty to himself, to his higher self.
Since every soul is a part of the universal soul, when a man discharges his duty to his higher self, he fulfills all other obligations. The higher self of man is waiting for its manifestation, its unfoldment, but it is constantly being eclipsed by his lower self or ego. In the din and bustles of day to day life, in the headlong rush towards sense enjoyment, man neglects the still small voice within him, the cry of his soul. As a result, whatever he does becomes in the end a source of dissatisfaction and frustration for him. The main problem is that people want to become teachers without undergoing a strict course of sadhana, without becoming pure instruments in the hands of the Lord. He lives in the temple of the human body. We should first come to know the Lord ourselves and be able to solve our own problems and then help others. It is quite absurd to think or talk about helping others spiritually. Once you have developed real purity and non attachment, you no longer get mixed up with the world, and the world no longer acts on your mind and nerves. And then alone you talk about helping others, realizing that you are only an instrument in the hands of the Lord. So, if even if we do not find time to read much, intense thinking must be made a matter of daily practice. So much time is continually being wasted in thinking useless and even harmful thoughts, which might be made use for thinking along higher constructive lines. There are so many dull moments in the course of the day, and these dull moments can very well be used for higher thinking instead of thinking useless thoughts. Let us make use of that time for something higher instead of sitting in some corner and being dull. We can make use of such moments by thinking of something higher and truer. If we really do this, we shall find that there is plenty of time for our practice, our studies, our intelligent thinking. Our thoughts should never be allowed to drift aimlessly. Very often we go and sit in a more or less thoughtless manner for half an hour or so, or read some light stuff or listen to something light and worthless. All this we do more or less like idiots. We even find it pleasant, but the moment this half an hour is to be used for devotional readings or serious studies, for something profitable and healthy, our whole brain revolts and resists. It is advisable for everybody not only to find time for his prayers, japa, and meditation, but also to have some regular studies, some readings of selected passages from the Upanishad for at least 10 minutes after his spiritual practice. मनुष्य का अपने प्रति कर्तव्य। ऊपर बताए गए 5 प्रकार के कर्तव्यों के अतिरिक्त प्रत्येक मनुष्य का अपने प्रति भी कर्तव्य होता है। अपनी उच्चतर आत्मा के प्रति भी उसका कर्तव्य है। चूंकि प्रत्येक आत्मा विश्वात्मा का ही अंश है, अतः जब मनुष्य अपनी उच्चतर आत्मा के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करता है तो वह अन्य सभी दायित्वों को पूरा करता है। मनुष्य की उच्चतर आत्मा अपने प्रकटीकरण की प्रतीक्षा कर रही है, लेकिन यह निरंतर उसकी निम्नतर आत्मा या अहंकार द्वारा ग्रहण की जा रही है। दैनिक जीवन की आपाधापी में, विषय भोगों की ओर तीव्र दौड़ में मनुष्य अपने भीतर की शांत छोटी सी आवाज, अपनी आत्मा की पुकार को अनदेखा कर देता है। उसका परिणाम यह होता है कि वह जो कुछ भी करता है वह अंततः उसके लिए असंतोष और कुंठा का स्रोत बन जाता है। यहाँ तक कि वह अपने साथी प्राणियों की तथाकथित सेवा भी उसे थका हुआ और असंतुष्ट छोड़ देती है। मुख्य समस्या यह है कि लोग कठोर साधना पाठ्यक्रम से गुजरे बिना, भगवान के हाथों में शुद्ध यंत्र बने बिना ही शिक्षक बनना चाहते हैं।
वे मानव शरीर के मंदिर में रहते हैं। हमें पहले स्वयं भगवान को जानना चाहिए और अपनी समस्याओं को हल करने में सक्षम होना चाहिए, फिर दूसरों की सहायता करनी चाहिए। अपने अस्तित्व से हम दूसरों की चुपचाप मदद कर सकते हैं, लेकिन स्वयं कोई आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त किए बिना दूसरों की आध्यात्मिक रूप से मदद करने के बारे में सोचना या बात करना बिल्कुल बेतुका है। एक बार जब हम आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त कर लेते हैं, तो दूसरों की आध्यात्मिक रूप से मदद करने के बारे में सोचना या बात करना गलत नहीं है। अक्सर हम आधे घंटे तक बिना सोचे समझे बैठे रहते हैं या फिर कुछ हल्का फुल्का पढ़ते हैं या फिर कुछ हल्का फुल्का या बेकार सुनते हैं। यह सब हम कमोबेश बेवकूफ़ों की तरह करते हैं। हमें ये अच्छा भी लगता है, लेकिन जब आधे घंटे की इस्तेमाल भक्तिपूर्ण पठन या गंभीर अध्ययन किसी लाभदायक या स्वस्थ चीज़ के लिए करना होता है, तो हमारा पूरा दिमाग विद्रोह कर देता है और उसका विरोध करने लगता है। बुद्ध की इस प्रसिद्ध उक्ति पर विचार करना लाभदायक है कि भाइयों आओ, मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ कि तुम सावधान रहो। यह सभी मिश्रित वस्तुएं क्षय के अधीन हैं। यह सलाह हमें घटना के क्षणभंगुर दृश्य का बोध कराकर व्यर्थ के कामों के और व्यर्थ की सोच से बचने में मदद करती है। अगर हम समय का सदुपयोग करें तो हम बेकार की बातों, बेकार के कामों और विचारों में जो खो रहे हैं, तो हमें अपनी ज़रूरत से ज़्यादा हमको समय मिल जाएगा। अभ्यास के ज़रिए सोच आधे घंटे में पूरी हो सकती है। हर किसी को न केवल अपनी प्रार्थना, जप और ध्यान के लिए समय निकालना चाहिए, बल्कि अपनी आध्यात्मिक साधना के बाद कम से कम 10 मिनट के लिए कुछ नियमित अध्ययन, उपनिषदों के कुछ चुनिंदा अंशों का पाठ भी करना चाहिए। जब हम देखते हैं कि हम जड़ता की इस मनोदशा को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते हैं, तो हमारे लिए सब कुछ करना बहुत आसान हो जाता है। तो इंद्रिय नियंत्रण हमें गहनता में सोचने और गहनता से तथा उद्देश्यपूर्ण ढंग से जीने में मदद करता है। हमेशा इंद्रिय जगत में क्यों जाना और रहना चाहिए। जब इंद्रियां नियंत्रित होती हैं, तो व्यक्ति आसानी से विचार के धरातल पर रह सकता है। बाहरी दुनिया से धक्के पे धक्के क्यों खाने चाहिए। जब विकर्षण दूर हो जाते हैं, तो हम अधिक गहन और सचेत जीवन जीने में सक्षम हो जाते हैं और सभी परिस्थितियों में यथासंभव सजग रह पाते हैं। आज के लिए इतना ही। कल का टॉपिक रहेगा ड्यूटी एंड अटैचमेंट, कर्तव्य और जुड़ाव लगाव। तब तक के लिए नमस्कार।